Hello, everyone, and welcome to the Sunscreen Must special podcast. I'm your anchor, Pooja, and today we're going to be talking a lot about protecting your skin and keeping your skin healthy using the sunscreen around the year, especially with the onset of winter, where your skin also can get dry. Now, today we're going to be deep diving into the world of dermatology and talking about a topic which is very close to all our hearts: the role of sunscreen in keeping our skin healthy. Now, we all know that sunscreens protect our skin from the harmful UV rays, and the damage that the UV rays can cause can be really long term. And today, we're going to be unveiling a lot of mysteries around our skincare superhero and how it can help you achieve the clearer and healthy skin. So, whether you're a skincare novice or a seasoned enthusiast, this podcast is surely going to be empowering and informative for all of you. And to educate us more about this interesting subject of sunscreen, we have amongst us a very renowned dermatologist and cosmetologist, Dr. Supriya Deshmukh. Dr. Supriya, welcome to the Sunscreen Must Thank you podcast. so much. So, Doctor, before we really deep dive and talk about sunscreen, I want to know, you look so beautiful. So, what do you do for keeping your skin so beautiful and youthful? Early on, because almost when we join our MD in dermatology course, uh, by the time we were like 24 or 25, right about the time when the aging really starts showing and everything, is when we start learning about the science behind it. And we sort of, pick up things for ourselves also that we start incorporating very early on, so that, because we have to look the part when we are sitting in front of the patient, and they are judging you all the time when you have to practice what you preach. Yeah. So that's super important. Well, on that note, we have a beautiful doctor with us today. So, doctor, we clearly see your skin is youthful, but you need to tell us your secret to that beautiful skin. I feel I started using a moisturizer and a sunscreen very early on. I liked doing skincare since a very long time, like since probably through my teenage, because I used to suffer from a lot of pimples. So got into skincare quite early. Just a basic moisturizer and a sunscreen was quite early that I started using. And I think the other major contributing factor to my skincare routine was the diet that I followed. Wow. Since I used to suffer from the PCOD issues, I learned to watch my diet again very early on. Wow. Yes, avoiding the processed, focusing more on protein, getting my exercises regularly whenever possible. Helped me. Absolutely. Yeah. So it's a combination that's worked through really well for the Very doctor, true. and we're glad you're here with us. Thank you so much. Yeah. So, doctor, you just spoke about, skincare starting at an early age. So I want to know, how early do we really start with skincare if we have to really talk about it? Yeah. I always feel it is extremely important to pick the moisturizer very soon. Even when you're a child, like age-old techniques, of using oil was so prevalent in our country. Why? Because oil is a moisturizing factor. Right. And as and when the age evolved and everything, then we move on to lotions and creams, all those things. So I think moisturizer is definitely something that you need to start using early on for your body, for your face. And as the age grows up, as we mature, then we have a lot of things playing out on our skin. We start going out. We start playing out as children, and we start going on vacations with our parents. That is when, a little bit of, sunscreening during that time. I think very, very, very small things. Okay. All the while the focus being on the moisturizer. Right. And definitely once we cross over to the adulthood, then we start working, and then, in profession wise also, there could be people with absolutely no sun exposure, especially people who do night duties. There could be people with a lot of sun exposure, having field jobs. So many options. Some are housewives, some are just like go in the morning, come back at night kind of routine. So we really have to know. I think it's best always to consult a professional, get your skincare routine written by them and keep following them. Absolutely. Yeah. So if I jump to this, what is the right age for sunscreen usage to start?
So below 2 years, sunscreen we don't recommend. Okay. Okay. After the age of 2 years, my advice to parents is when they come asking for it, that you can use sunscreen on your child if the child is going to get exposed to a lot of sun for a long period of time. Okay. Such kind of exposure is usually there during vacations. Okay. You know, if they're going for beach vacations, if they are going for treks, some parents do carry their kids to treks. And when they start becoming a little bigger, they also start enrolling them in swimming classes. So if you are going to swim between the time of 9 a.m. to 4 p.m., where, you know, your UV exposure is the maximum in the atmosphere, that is when, again, I recommend sunscreens to them. So I think after the age of 2, Okay. depending on activities, but like let's say a child, I don't think a child needs to apply sunscreen every day. Okay. Definitely once you turn teenage, you know, once you've crossed 13, 14, and then, you know, you're going to go out a lot, you're going to mix with your friends, you're going to have some social outings. I see. Then I think, you know, they can start incorporating daily into their skincare routine. So, doctor, just going a little more deep into the subject, एक growing concern है, reports में भी आ रहा है that, you know, sunscreen का एक potential harmful effect है, especially on the human body, be it the endocrine system or the aquatic ecosystem. For that matter, अब बच्चों की भी बात कर रहे थे जिन्होंने sunscreen use करनी चाहिए. So, किस तरह की sunscreens हैं जो safe हैं और क्या ये myth है और is it really true for that matter? देखिए क्या होता है, सनस्क्रीन जब हम यूज़ करना शुरू करते हैं तो एक होता है उसकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए. जी. अब कई बार क्या हो जाता है कि ये जो मरीन लाइफ वाला जो मुद्दा आया है वो इस हिसाब से है कि जो कुछ केमिकल सनस्क्रीन्स थे जैसे एवोबेंजोन है, बेंजोफेनॉन है, ऑक्सीबेंजोन है, तो पाया गया कि जो बहुत सारे बीचेस में लोग सनस्क्रीन लगा के जाते हैं तो दे वर अफेक्टिंग द कोरल रीफ्स ऑफ दैट रीजन. ओके. अभी क्वांटिटी मैटर करेगा इसमें. अभी ये जो हम डे टू डे में यूज़ करते हैं इसकी क्वांटिटी काफ़ी कम होती है जी. बट जब हम बीच पे होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा पोत के लगाएंगे, है ना, बॉडी के ऊपर. तो रिसर्च से जैसे चीज़ें आती रहती है, सो यू नो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो रिसर्च करके सेफर मॉलिक्यूल्स लेके आते हैं. ओके. तो अभी के जो न्यू एज सनस्क्रीन्स है, स्पेशली जो अच्छी कंपनीज के हैं, जो मल्टीनेशनल्स है, बिग फार्मा कंपनीज अपनी कंट्री में है, तो वो इस चीज़ पे हमेशा गौर करेंगे. और उसको गौर करते हुए जो अच्छे अच्छे मॉलिक्यूल्स है जैसे यूवेनुल ए है, टाइनोजॉर्ब है, ये सब जो है ये पाए जा रहे हैं कि ये सेफ है लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए, जो एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन नहीं होगा, कोरल रीफ्स को इनसे तकलीफ नहीं होगी. तो ये सब चीज़ें जो रिसर्च बेस्ड होती है तो फिर वो धीरे धीरे यू नो पता चलती है. फिर इसमें चेंजेस लाना भी ज़रूरी है. मेरे हिसाब से रिसर्च करके अगर कोई पाया जाता है और उसको करेक्ट किया जाता है तो वो बहुत अच्छी बात है. बिल्कुल. सो अगर हम सेफ सनस्क्रीन की बात करें तो क्या वो टॉप 3 चीज़ें हैं जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं और हमारे व्यूअर्स जिसे देख के समझ सकते हैं कि दिस इज़ अ सेफ सनस्क्रीन? हाँ. सो सेफ सनस्क्रीन होता है मिनरल सनस्क्रीन, जिसमें सिर्फ जिंक ऑक्साइड और टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है. ये सेफ इसलिए होता है बिकॉज ये बच्चों में भी दे सकते हैं. ओके. उसमें कोई केमिकल सनस्क्रीन नहीं होता है. तो सनस्क्रीन में 2 हिस्से होते हैं, एक होता है उसका केमिकल पार्ट, एक होता है उसका फिजिकल पार्ट. जो केमिकल पार्ट होता है वो यूवी रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है और जो फिजिकल पार्ट होता है वो यूवी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है. तो एक सनस्क्रीन जो होता है वो जनरली दोनों का मिक्सचर होता है. बट सिर्फ फिजिकल सनस्क्रीन्स भी बनाए जाते हैं जो कि बच्चों में बहुत सेफ होते हैं क्योंकि उसमें कोई केमिकल नहीं होता है. बहुत सारे जो अडल्ट्स हैं जिनकी स्किन सेंसिटिव है उनको भी ज़्यादातर फिजिकल सनस्क्रीन प्रिस्क्राइब किया जाता है. ओके. सो वन इज फिजिकल सनस्क्रीन एंड जो नए मॉलिक्यूल्स है जैसे मैंने कहा यूवेनोल है, टेनोजॉर्ब है, दीज आर वेरी गुड न्यू एज सनस्क्रीन मॉलिक्यूल्स जो कि इन कॉम्बिनेशन विथ जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड विल टर्न आउट टू बी वन आइडियल सनस्क्रीन. Absolutely. So I think this is great information, doctor. So आम तौर पे जब हम सनस्क्रीन की बात करते हैं तो हमें शायद सिर्फ SPF पता है जी. बट क्या हम अपने व्यूअर्स को बता सकते हैं कि व्हाट इज SPF एंड क्यों SPF होना चाहिए, कितना होना चाहिए? ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन इफ यू कैन शेयर. या श्योर. सो SPF का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर. ओके. और SPF सिर्फ
ये बता पाता है कि यूवी बी रेडिएशन से आपको कितना प्रोटेक्ट कर सकता है। सो यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी, ये 3 यूवी रेडिएशंस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं। जो ओजोन लेयर है वो यूवीसी कंप्लीटली अब्सॉर्ब कर लेता है। वो सबसे ज्यादा हार्मफुल रेडिएशन इज यूवीसी, जो अब तक हम तक तो पहुंचती ही नहीं है, बिकॉज ओजोन डज इट्स जॉब। वो अर्थ की सनस्क्रीन है ओजोन लेयर। सो द यूवी एंड यूवीबी डज कम डाउन, एंड जो रेडिएशन हमको आता है उसमें 15 to 20% ही सिर्फ यूवीबी है। तो एसपीएफ जब हम बोलते हैं तो एसपीएफ से आप सिर्फ यूवीबी से प्रोटेक्शन पा रहे हैं। यूवीए तो उसको भी उससे भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो एसपीएफ जस्ट ऐसे बोलते हैं कि पॉपुलर हो गया है एज अ टर्म, जी, जैसे हम जार्गन बोलते हैं तो उसमें एसपीएफ 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 वही पॉपुलर हो गया है। बट दूसरे भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे पीए होता है विच इज अ जापानीज स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग अ सनस्क्रीन। एक होता है क्रिटिकल वेवलेंथ, एक होता है बूट स्टार रेटिंग जो कि ब्रिटिश है। तो वो जो पैरामीटर्स है वो आपको बताएंगे कि सनस्क्रीन में यूवीए से बचने की कितनी ताकत है। बिल्कुल। तो एसपीएफ भी ताकत को दर्शाता है, और पीए, बूट स्टार और क्रिटिकल वेवलेंथ भी ताकत को दर्शाता है। तो एसपीएफ मेरे हिसाब से 50 तक होना चाहिए, लेकिन 30 भी ठीक है अगर बहुत कम सन एक्सपोजर है तो। और पीए कम से कम उसमें 3 ग्रेड्स होते हैं, एक तो +1, +2 या +3। तो एटलीस्ट +2 के ऊपर होना चाहिए। और बूट स्टार रेटिंग कम से कम 4 होने चाहिए। तो 4 या 5 ये अच्छे सनस्क्रीन की अच्छी ताकत दर्शाते हैं कि यूवीए और यूवीबी दोनों से प्रोटेक्शन मिल रहा है। बिल्कुल। तो माय व्यूअर्स, सिर्फ एसपीएफ ही नहीं, कई सारे फैक्टर्स हमें कंसिडर करने होंगे बिफोर वी डिसाइड द राइट सनस्क्रीन। जी। सो डॉक्टर, इन दिस फास्ट पेस एनवायरनमेंट जो दिखता है वही बिकता है, पीपल जस्ट लुक एट द एडवर्टाइजमेंट और चले जाते हैं ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि क्या है। सो आपने बताया कि फार्मा कंपनीज बहुत सारी चीज़ें लेकर आती हैं इसमें। सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि सनस्क्रीन सिर्फ कॉस्मेटिक यूज के लिए नहीं है, सिर्फ एक ऊपरी ब्यूटी के लिए नहीं है। देयर इज मोर साइंटिफिक रीजन टू प्रोटेक्ट योर स्किन। सो कैन यू जस्ट हाईलाइट दैट एस्पेक्ट टू आवर ऑडियंस ऑल्सो कि जी। सो जब सनस्क्रीन बनाया जाता है तो उसका एक फायदा है ये कि आपको पिगमेंटेशन से बचाएगा, आपको एजिंग से बचाएगा, आपको यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डैमेज से बचाएगा। बट सनस्क्रीन का यूज कैंसर प्रिवेंशन भी है, तो स्किन कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए भी सनस्क्रीन का यूज है। सो इट इज एक्चुअली साइटोप्रोटेक्टिव, मतलब जो सेल्स होते हैं हमारे स्किन के अंदर उनको वो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डैमेज फ्रॉम यूवी रेडिएशन। ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि सनस्क्रीन बस ऐसा कोई भी रैंडम उठा लिया, कोई एडवर्टाइज देख ली, किसी इन्फ्लुएंसर का कुछ देख लिया, उससे अच्छा मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडिया में भाई कंसल्टेशन चार्जेस काफ़ी रीजनेबल है डॉक्टर्स के। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स डर्मेटोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट बैठते हैं। जस्ट जाके उनसे एक बार सलाह लेके आप अच्छा सा सनस्क्रीन लिखवा लीजिए, बिकॉज उनको एक्सेस होता है कि कौन सा बेस्ट सनस्क्रीन है। आप कंट्रीज को भी देखेंगे तो अपना जो FDA होता है, जिसको फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वो परमिशंस देते हैं कि ओके ये प्रोडक्ट बनेगा, ये मेडिसिन बनेगा। सनस्क्रीन्स भी FDA के अंडर आते हैं। सो when you're buying a product which is made by a good pharma company in our country, when you're buying products from the यूरोप साइड, बिकॉज यूरोपियन यूनियन के जो सनस्क्रीन स्टैंडर्ड्स है वो बहुत अच्छे हैं जी। तो आप जब वो प्रोडक्ट्स लेते हो तो आप यू आर बेटर प्रिपेयर्ड, बेटर इक्विप्ड टू हैंडल योर स्किन, एंड यू कैन बी लाइक रेस्ट अश्योर्ड कि आपने अच्छी सनस्क्रीन चुनी है। बिल्कुल, या बिल्कुल। सो आई थिंक डॉक्टर ने बहुत सही कहा कि डॉक्टर के पास जाएं लिखवाने के लिए, बिकॉज ऑल्सो योर स्किन टाइप इज डिफरेंट, राइट? हर स्किन के लिए आई थिंक अलग टाइप की सनस्क्रीन है। बिल्कुल। एंड इसीलिए मैं अपनी आज सनस्क्रीन लेकर आई थी आपको मिलते वक्त कि ओके मैं आपको दिखा सकूं एम आई यूजिंग द राइट सनस्क्रीन एंड वेदर दिस इज रियली दैट एंडोक्राइन सेफ एंड ऑल दोज पैरामीटर्स जो आपने कहा, एक्वा सेफ, वेदर इट्स रियली मीटिंग ऑल दैट क्राइटेरिया। Yeah, let me check. Yeah, you don't have those, the ones that I talked about. वो molecules नहीं है इसमें जी. And this does have the Uvinol and the Tinozorb and everything. Okay. And another part, it's silicone free. So, अच्छा, it won't give you acne. Okay. Yeah. This is good. It's PA
4 and it is also SPF 100. So this is a very good sunscreen. I mean, with this sunscreen, like you can use it in your daily, you can use it probably also, when you're on vacations. I think you're sorted with just one product. Awesome. Yeah. Thank you, doctor. So, doctor, हमने sunscreen के बारे में बहुत कुछ समझा आज, that there is a lot of criteria to be considered. But when it comes to the formulation, is there a specific formulation basis, the age, gender, profession? Is there something like that? Yes. So there are gels, there are creams, there are lotions, and also there are sprays. Okay. और कुछ sunscreen sticks भी है आजकल. And you also get some sunscreens for touch-ups in powder formats. Okay. Yeah. So, lotions are more preferable for dry skin people. Gels are more preferable for acne-prone people. Mhm. And we have sprays. So sprays, according to me, are very good when we have to spray like large surface on our body. So बहुत पूरा हाथ है, back है, Okay. chest है, अगर swimming costume पहना है किसी चीज का, पूरा leg cover करना है, तो spray बहुत easy और handy आ जाता है. Okay. So that way. And like people also like to touch up sunscreens again and again. तो टचअप करते वक्त क्या हो जाता है कि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अगर आपने मेकअप किया है या वैसे है तो फिर उसमें सनस्क्रीन की स्टिक्स है. आई थिंक आई लाइक टू रिकमेंड द पाउडर्स बिकॉज यू कैन जस्ट डैब देम एंड योर डन लाइक अ टचअप ऑल्सो. एंड सो स्पेशली अभी जैसे हम शूटिंग कर रहे हैं अभी तो ये लाइट्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं. बिल्कुल. तो मैंने भी थोड़ा सा सनस्क्रीन लगा लिया शूट स्टार्ट करने से पहले to protect because all these lights are also very they can heat up the skin like the infrared जैसे आपके sunscreen में you have that IR protection also. जी. So that protects you from then all these kinds of exposure. Okay. And doctor, मैंने tinted sunscreen के बारे में भी सुना है. So what is that exactly? Yeah, so tinted sunscreens is they add different concentrations of ferric oxide. Ferric oxide एक red color का pigment होता है. आप उसको जब सनस्क्रीन के साथ मिक्स करते हो तो वो थोड़ा सा स्किन कलर जैसा रंग देता है. Right. और वो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस के हिसाब से आप अलग अलग कम्प्लेक्शन के लिए अलग अलग टोन्स बना सकते हैं. तो टिंटेड सनस्क्रीन उनके लिए है जिनको फटाफट तैयार होना है. मॉइस्चराइजर लगा लिया, टिंटेड सनस्क्रीन लगा लिया तो वो थोड़ा सा बीबी क्रीम इफेक्ट देता है स्किन के ऊपर. तो काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है कि वो लगाने के बाद थोड़ा तैयार हो गया ऐसा लग रहा है. एंड कुछ लोगों को ऐसे रहता है कि फाउंडेशंस या कंसीलर सूट नहीं करते हैं जी. तो उन पेशेंट्स के लिए भी टिंटेड सनस्क्रीन एक अच्छा ऑप्शन होता है क्योंकि आपने लगा लिया, फंक्शंस में भी जाना है तो बहुत सारे लोग उसको प्रेफर कर लेते हैं कि मॉइस्चराइजर लगा के वो लगा लिया, भले इवनिंग में जा रहे हो लेकिन वो टिंट की वजह से स्किन थोड़ा कवर्ड दिखता है, अच्छा दिखता है. या राइट. सो डॉक्टर, सनस्क्रीन के बारे में एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था. व्हाट अबाउट पीपल स्विमिंग जिसके हम बात कर रहे थे, वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन के बारे में अगर आप कुछ जानकारी दे सकें. या सो वाटर रेजिस्टेंस इज अ क्वालिटी ऑफ अ सनस्क्रीन. सो जो थिकर सनस्क्रीन्स होते हैं, जो थिक होते हैं वो काफ़ी वाटर रेजिस्टेंट होते हैं. बट द वाटर रेजिस्टेंस इज रफली अप टू 1 आवर आप पकड़ सकते हो. मतलब अगर आप इफ़ यू आर अ बीच पर्सन एंड यू लाइक टू गो इन टू द बीच एंड यू कीप स्विमिंग कमिंग बैक then after every dip you come out you have to reapply the sunscreen because वो निकल जाता है काफ़ी हद तक. और हम जब बीच पे होते तो स्वेटिंग भी हो रही होती है तो दैट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ क्लियरिंग योर पोर्स आउट. तो वो है. एंड इन आई थिंक स्विमिंग सेशन तो आई डोंट थिंक पीपल डू इट मोर देन 1 to 2 hours एट अ टाइम. सो एक बार लगा लिया तो आई थिंक यू आर सॉर्टेड. ओके. या सो डॉक्टर, हमने ये भी कई बार सुना है दैट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में स्पेशली बीबी क्रीम्स में आजकल सनस्क्रीन्स आ गई हैं. सो अगर somebody says that मेरी तो बीबी क्रीम में ही सनस्क्रीन है, so will they still need a sunscreen, a tinted one or any one? या सो नाउ द थिंग विद दैट इज कि आपके प्रोडक्ट में भले ही लिखा हो कि दिस इज अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो आता है विच इज इट इज विद SPF या दिस इज अ बीबी क्रीम विद एन SPF. रिमेंबर जब हम सन प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो उसको एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में लगाना जरूरी है. जैसे हमने देखा है कि 2 फिंगर लेंस है या 1 रुपी कॉइन जितना सनस्क्रीन लेना है. कोई भी अगर हम बीबी क्रीम उतने क्वांटिटी का नहीं ले सकते हैं, आप अजीब से लगोगे. तो मैं पेशेंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि जब वो टिंटेड सनस्क्रीन्स भी लेते हैं या बीबी क्रीम्स यूज कर रहे हैं जिसमें SPF है, आप मॉइस्चराइजर लगाए, आप उस प्रोडक्ट को लगा लीजिए जी, और फिर उसके ऊपर आप आपका बेबी क्रीम ब्लेंड कर दो. या तो अगर आपको टिंटेड सनस्क्रीन भी लगाना है तो आई टेल देम कि एक थोड़ा सा बेसिक सनस्क्रीन लगा के देन यू पुट द टिंटेड सनस्क्रीन. बिकॉज जो आइडियल क्वांटिटी बताई गई है अगर उतना आप टिंटेड सनस्क्रीन भी लगाओगे ना बहुत ओवर लगता है. तो
वो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अप्रोच नीडेड है. Right. So even if you're going the cosmetic route, you need to go the doctor's route. Yeah, true. So डॉक्टर आमतौर पे लोग सनस्क्रीन लगाते हैं टैन नहीं होने के लिए या सनबर्न नहीं होने के लिए. सो इज इट लाइक सनस्क्रीन इज प्रिवेंटिंग टैनिंग एंड यू नो क्या उनको रीअप्लाई करना चाहिए सनस्क्रीन को? उनको शायद वो भी जानकारी देंगे हम तो अच्छा होगा. So I have a bad news for you, and that is that sunscreen does not prevent tanning. ओके. Okay, आप कितना ही सनस्क्रीन लगा लीजिए, इंडियन स्किन टैन होने ही वाली है. Okay. उसको मे बी कुछ हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, बट इट्स 5-10% एट बेस्ट. If you want to prevent tanning, then you have to have some supplements also when you're going out on the beach. Okay? But prevention is not possible. Reduction of tan is possible. Okay. Okay? So sunscreen don't prevent tanning. Sunscreen are there to protect you from the UV radiation damage only. Right. Yeah. I think that's a very clear answer, doctor. So thank you. बीच पे जा रहे हैं टैन होंगे लेकिन सनस्क्रीन जरूर लगा के जाइए जैसे Definitely. सो डॉक्टर टैनिंग का तो हम समझ गए लेकिन सनस्क्रीन को रीअप्लाई कितनी बार करना होता है स्पेशली फॉर ऑफिस गोअर्स और समबडी हु स्विमिंग आल्सो फॉर दैट मैटर? So I feel if your profession is something where you keep going in and out of the office, then एक बार morning में और एक बार I typically tell them आप post lunch एक बार reapply कर लीजिए. There are many people who like to take a walk post lunch in their corporate office. So वहाँ पर if you are a housewife and अगर दिन भर घर में ही हैं आप तो एक बार morning में ज़रूर लगा लीजिए. Reapplication I really leave it to them, उनको time मिला तो. But there are many housewives with kids, तो लेके आना जाना बच्चे को, स्कूल है, क्लासेस है, तो एक बार मॉर्निंग एंड आफ्टरनून रीएप्लीकेशन 2 times इज प्रैक्टिकल और डूएबल. उसके अलावा अगर कोई बोलता है कि हर 2-2 घंटे में लगाना है सनस्क्रीन, तो मुझे नहीं लगता वो पॉसिबल है प्रैक्टिकली स्पीकिंग. बट अगर आप बीच पे है, इफ यू आर नॉट सिटिंग अंडर एनी कैनपी एंड यू आर planning to spend 6 hours, 7 hours on the beach from morning till the afternoon, then definitely every 2 hour leave is required. बिल्कुल. सो अगर आप घर पे बहुत बिजी हैं, डॉक्टर्स मेड इट वेरी सिंपल फॉर यू. हर 2-3 घंटे में नहीं, पर दिन में 2 बारी तो लगा ही लें. सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर. So doctor, we are talking about using sunscreen around the year, but with the onset of winter, people still don't feel कि winter में क्या जरूरत है. So why is it essentially important during winters like to use sunscreen? बहुत मिथ है कि ठंडी में सनस्क्रीन नहीं ज़रूरी है. लोगों को ये भी लगता है कि जब वो स्नो वाले एरिया में जाते हैं जहाँ पे धूप तो है लेकिन वो फील ही नहीं हो रही है, तो उनको लगता है कि हीट का कुछ कनेक्शन है यूवी रेडिएशन से. But let me tell you, winters and when you go to snow-capped places, in fact, your UV radiation is double in those areas. So you are supposed to use a sunscreen no matter what the season is, okay? And in fact, सनस्क्रीन का प्रॉबेबली फॉर्मुलेशन आपको दूसरा पिक करना पड़ता है इन विंटर सीजन. तो अगर आपकी स्किन ड्राई होती है तो आपको मॉइस्चराइजर के बाद शायद अभी लोशन बेस्ड सनस्क्रीन ज़्यादा प्रेफर करना पड़ेगा. और अगर आपकी स्किन ऑयली ही रहती है तो देन यू कैन कंटिन्यू यूजिंग द जेल बेस्ड सनस्क्रीन दैट इज सूटिंग यू इन योर समर सीजन ऑल्सो. एंड as far as ठंड is concerned, there's one more problem that comes up in Indian skin tone particularly, कि सनस्क्रीन लगाने के बाद डॉक्टर मैं ना विंटर्स में बहुत काली दिखती हूँ. तो ये बड़ा प्रॉब्लम है. सो उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने बताया आपको कि केमिकल और फिजिकल दोनों पार्ट होते हैं, राइट? तो केमिकल क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है, और फिजिकल वाला लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो यूवी रेडिएशन भी रिफ्लेक्ट होता है. तो अगर आप एक सनस्क्रीन चूज करेंगे जिसमें फिजिकल फिल्टर्स ज्यादा है, तो वो वाला जो इशू है वो निकल जाता है कि मैं डल दिखती हूँ सनस्क्रीन के बाद या मैं बहुत ज्यादा काली दिखती हूँ, तो वो वाला फैक्टर कैन बी टेकन केयर ऑफ. सो बहुत सारे अच्छे अच्छे फॉर्मुलेशंस है जो कि प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं टू सॉल्व दैट इशू. Absolutely. क्रिसमस वेकेशन में घर पे सनस्क्रीन नहीं छोड़ के जाना है. We have to carry our sunscreen 100% despite whatever the season is. Yes. So doctor, whenever I talk to my elderly family members especially and I talk to them about sunscreen कि उनको भी लगाना चाहिए, so they come back to me कि हमारे ज़माने में कुछ नहीं होता था, ये आजकल के ज़माने का चल गया है. तो so as if sunscreen is the trend, but then I go back to them and tell them कि नहीं, ये बहुत important है, and they don't believe it. But I wanted to tell कि sunscreen क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है और आजकल के ज़माने में क्या बदल गया है कि पहले के लोगों को दिक्कत नहीं हुई, कोई टैनिंग नहीं थी, दे हैव दैट यूथफुल स्किन, तो हमारे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब? क्या था ना, 2-3 फैक्टर्स है दैट वर्कड फॉर दैट जनरेशन. ओके, वन वाज देयर डाइट वाज अमेजिंग.
there was no processed food. Okay, तो उनके skin को that skin never had to handle the oxidative damage that comes from processed food. Okay, secondly, environment per se was much better that time. You know, when it comes to the ozone, the thickness of ozone layer, we all know that the thickness of ozone layer has gone down over the past few hundred years. Okay, countries like Australia, they have it so thin that sunscreen for them is like probably brushing their teeth. It is that important that वो करना ही करना है. Because in Australia, people with the lighter skin tones, they are at risk of developing cancer 1 in 3. Okay. Like 3 आदमी को पकड़ लो तो एक को तो guaranteed कैंसर होने वाला है. So उनके लिए वो absolutely medicine जैसा बन जाता है. I'll tell you about Indian population. Indian population is blessed with melanin. हमारे अंदर जो ये कलर है, हम we are a people of skin of color. This brown skin of ours is actually a blessing in disguise. Right. Okay, most of us don't like our color, but the melanin is an inherent sunscreen that we have. So when we talk about tanning, tanning क्या है? जैसे ही हम UV radiation में expose होते हैं, 1 घंटे में बॉडी इंटरनल सनस्क्रीन बनाना शुरू कर देती है जो आपका मेलेनिन है. तो इंडियंस को स्किन कैंसर का उतना रिस्क नहीं है, जो कि अभी बिकॉज ओजोन लेयर थिन होते जा रहा है. We are seeing cases of skin cancer in India also, but not as common as probably people in the temperate zones or Australia. Right. Okay, but the brown color is actually a boon. Okay, and secondly, जो हमारा डाइट है, अगर हम उसमें से प्रोसेस्ड फूड कम कर दे तो हमारे स्किन को हम कम काम दे रहे हैं डिटॉक्सिफाई करने का. ओके, सनस्क्रीन तो जरूरी है ही. एंड थर्ड फैक्टर इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि हम आउटडोर्स बहुत निकलने लग गए हैं और पोल्यूशन भी अफेक्ट करता है चीज़ों को. तो जब एयर आता है ना, एयर के अंदर पार्टिकल्स आते हैं, तो नेचुरली जब हमारे जो बुजुर्ग हैं जब वो जीते थे तो पार्टिकल्स प्रोबेबली थोड़ा सा धूल मिट्टी एंड पोलन्स रहते थे. बट नाउ वी हैव दीज कार्बन एमिशंस फ्रॉम द व्हीकल्स, वी हैव इंडस्ट्रियल पोल्यूशन. नाउ दीज आर पार्टिकल्स, दे आर नॉट विजिबल टू अस बट दे कीप रिफ्लेक्टिंग लाइट्स. अगर आपने लाइट डिफ्रैक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा जब लाइट हिट करता है किसी चीज को तो वो डिफ्रैक्ट होता है, या तो रिफ्लेक्ट बैक करता है या डिफ्रैक्ट होता है. राइट. So what happens because of that is that adds on to the UV radiation load and it adds on to us so much more. Okay, so I'm not saying to overdo it, but definitely it is needed because हम अभी generations भी चाहते हैं ना, जैसे उनके जमाने में ना इतना फर्क नहीं पड़ता था, उनको टैन हो गए, थोड़े से धब्बे आ गए, मस्से आ गए, ठीक है, होता ही है, उम्र है. बट जैसे जैसे जनरेशन भी चेंज हो रहा है, we are desiring to look better, we are desiring to look younger. तो अगर कोई desire है तो फिर उस हिसाब से you have to work. Absolutely. It's like that. So आज हमारे पास solution भी है. जी, to look young. absolutely. Yeah. And it starts with sunscreen. Absolutely. So डॉक्टर जैसा आपने बताया, we have measures to look beautiful, and हमारी Indian population में we have middle class, we have the low middle class community, we have our students who are the trendsetters who want to look beautiful. So what is the ideal skincare routine that everyone can just follow very easily? I think just invest in 3 things. अच्छी फेस वॉश, अच्छा मॉइस्चराइजर और अच्छा सनस्क्रीन. ओके, पकड़ के चलिए कि आप जो भी प्रोडक्ट अभी आपके इस उम्र के लिए चूज कर रहे हैं, शायद 5 साल के बाद आपको वो चेंज करना पड़ेगा. बिकॉज आई हैव सीन इन माई प्रैक्टिस 5 to 6 years यू आर ओके विथ दैट स्किन केयर रूटीन, बट उसको थोड़ा ट्विक करना पड़ता है every 5-6 years. Right. Okay, so good moisturizer, face wash and sunscreen is must. Okay, thankfully in our country we are a great pharma manufacturing hub. Our country, हमको बहुत ज़्यादा चीज़ें import नहीं करनी पड़ती है, at least when it comes to medicines and lotions and creams and sunscreens. We have amazing range of sunscreens from in all ranges, right from very affordable ones which will range from 200 to 300 rupees and the upwards which will go up to 3,000. So we have the range. Thankfully we live in a country where manufacturing happens in our country. So I think I think budget is not an issue. You just need the right person to guide you with according to your budget, and I think you're sorted.
So डॉक्टर डेली रूटीन की अगर बात करें तो सुबह दोपहर शाम, इफ वी कैन जस्ट ब्रेक इट डाउन, व्हाट डू दे नीड टू डू, बिकॉज लोगों को पता ही नहीं है कब क्लेंजिंग करना है, कब मॉइस्चराइजर करना है, सब गलत हो रहा है. सो वी कैन जस्ट ब्रेक इट डाउन फॉर आवर व्यूअर्स. So when you get up after bath, definitely cleanse your face. जैसे हम बॉडी को भी क्लेंस करते हैं, मॉइस्चराइजर इमीडिएटली लगाना है. जैसे ही चेहरा धुलता है, जैसे ही आपने डैप कर लिया, थोड़ा सा डैम्प जब होता है तभी मॉइस्चराइजर लगा लेना है. देन यू लेट दैट प्रोडक्ट सेटल ऑन योर फेस. ओके, फिर जब निकलने की बारी आती है, अब आपको पता है कि मुझे 15 मिनट्स के बाद निकलना है, हाफ एन आवर के बाद निकलना है, एटलीस्ट 20 मिनट्स बिफोर आपको सनस्क्रीन लगा के फिर आपको बाहर निकलना है. मेक श्योर फेस, नेक, थोड़े से कान और ये वाला एरिया भी लगवा लीजिए, क्योंकि यहाँ ये थोड़ा सा एक्सपोज रहता है. ओके, जब आप घर वापस आते हैं तो चेहरा डेफिनेटली धोना है, बिकॉज नॉट ओनली सुबह लगाए हुए प्रोडक्ट्स है, बट काफी पोल्यूशन और डस्ट के साथ हम घर आते हैं, तो वो क्लेंस कर लेना है. इमीडिएटली मॉइस्चराइजर लगा लेना है. आई थिंक अप टू द एज ऑफ ट्वीन, दैट इज 12, दिस मच इज इनफ. ओके, जैसे ही टीनेज स्टार्ट होता है, हमारे हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं, तो सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है. एक्ने आ गया, पिगमेंटेशन आ गया, ये आ गया, वो हो गया. तो उस हिसाब से भी आफ्टर पुटिंग योर मॉइस्चराइजर, जो भी फ्लॉ आपको करेक्ट करना है वो वाली क्रीम मॉइस्चराइजर के बाद लगा लिया. ओके, अब जैसे और मेच्योर होते जाते हैं, 30s आ गए, 40s आ गए, फिर आगे फाइन लाइंस, रिंकल्स, ओपन पोर्स, उस हिसाब के प्रोडक्ट्स रहेंगे. तो जो करेक्टिव प्रोडक्ट है वो या तो मॉइस्चराइजर के पहले या बाद में, दैट विल डिपेंड ऑन योर स्किन टाइप, कि ड्राई है कि ऑयली है, उस हिसाब से. तो बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है. काफ़ी बार मेरे पेशेंट्स बहुत सरप्राइज हो जाते हैं कि डॉक्टर बस इतना सही लिख के दिया आपने. तो मैं कहती हूँ कि इतना काफ़ी है. एंड एट द सेम टाइम आप यू कैन नॉट इग्नोर द पावर ऑफ डाइट. तो कीप अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड टू अ मिनिमम इन योर. आई टेल माई पेशेंट्स once a month इज गुड इनफ. बाकी टाइम बी वेरी रिलीजियस विथ योर डाइट. कम से कम लोड दो अपने बॉडी को, ताकि बॉडी जो है, जो भी अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स आप दे रहे हो, उसमें स्किन, हेयर दोनों अच्छे रहेंगे. बिल्कुल. So thank you very much, Doctor, for highlighting that. So, Doctor, one thing very interesting that I spotted the moment I walked in was, something written on the board, which is called as cosmetic gynecology. I think I've heard this term for the first time. So, please tell us what is exactly. So, cosmetic gynecology refers to cosmesis of the intimate areas of the body. Okay. As we age, as whatever hormones we endure, as a woman we endure childbirths, lactation, and so much more, including menopause. That does affect the way we look in our intimate areas. And there are women who do require help in that area, because they are conscious about how they look when they undress. So, cosmetic gynecology, solves those issues, and they solve it at the superficial level, that is the appearance part, and they also solve it at the deeper level, wherein all the the muscle tone and the tightness of organs that are required for having a great intimate life, those issues as well can be now sorted with cosmetic gynecology. Really interesting to know. Thank you, Doctor, for highlighting that. So, Doctor, I'm sure with all your valuable feedback that you've shared today, so much of insights that my viewers are going to really follow. And is there a way that they can really reach out to you? And if they have to, how do they do that? So I am practicing in Thane since the past 15 years now. My clinic name is iPerfect Dermatology and Aesthetics, and the clinic numbers are very well available on Google. If they have to reach out to me, they're most welcome. Also, Doctor, what all services do you offer at this center? So my clinic offers everything under the roof that is available for hair, skin, and nails, right from treatment of diseases to enhancing your existing skin, hair, and nails, to surgical options to remove any flaw that you may not want. So everything particularly which is which is related to cosmetology, dermatology, and aesthetic surgery, everything is offered at my center. Completely a new gen space to be at. So thank you very much, Doctor, once again for staying tuned in and joining us at the Sunscreen Must podcast.
I'm sure all our viewers are going to take a lot of insights to have this beautiful skin that they've always desired to have. Thank you. Thank you for all the questions. And I really hope my answers contribute to people's lives. For more such information and to get all the information and insights on skincare and sunscreen, stay tuned in to our channel, Sunscreen Must Podcast. We're available on Instagram, YouTube, Spotify, and Apple Podcasts. That's it for today. Have a great, great day and a beautiful skin. Thank you.